Yes, so good morning, all of you. Let us start with our today's lecture. So, today, I hope all of you can see this whiteboard clearly. Yes, okay. So, today we are going to start with isometric projections. Okay, so in these isometric projections, actually, we are, drawing the 2D figure, converting your two-dimensional figure to three-dimensional figure. So already we have learned in orthographic projections that how to draw from 2D to 3D to 2D. Okay, and in isometric we will see how to from 2D figure how to go for 3D figure. Okay, so let us see the problem first. Okay, so here there is one problem given to you. So now see this problem is, suppose this problem is given in your exam. Okay, so now how to start this problem? Okay, so first what we will do, first you have to see where is the observer. तो observer कहाँ पे, यहाँ पे O यहाँ पे लिखा है देखो फिगर में. Okay, so here there is the observer. Okay, so first you need to check out where is the observer always. Okay, that is your first step. Okay, तो यहाँ पे मैंने देखा फिगर में ऑब्जर्वर यहाँ पे दिया था. ओके, यहाँ पे भी ओ लिखा है देखो. ओके, so your observer is here. Now first initially you have to see what is the length of the figure. Okay, length, width and height. Okay, so what is the length, width and height of the figure? What is the length, please tell me. फ्रंट व्यू से आपको हमेशा लेंथ मिल जाएगा. देखो तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे लेंथ कितना दिख रहा है आपको? 90. हाँ, 90 प्लस कितना, ये डिस्टेंस कितना है? 30. यस, करेक्ट. यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 है, 30. यहाँ पे नीचे पता चल रहा है देखो, रेडियस 30 दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, इधर रेडियस आपको दिया हुआ है 30. सो 90 प्लस 30, टोटल लेंथ कितना हो गया? 120. टोटल लेंथ हो गया आपका 120. ओके, देन नाउ व्हाट इज दी विड्थ ऑफ दिस फिगर? तो विड्थ आपको कहाँ पे मिलता है? हमेशा टॉप व्यू में मिलेगा. ओके, तो विड्थ कितना है देखो? 60. यस, करेक्ट, वेरी गुड. सो विड्थ इज 60. ओके, सो विड्थ भी मिल गया. नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द फिगर? तो हाइट वापस किसमें मिलता है? 50. यस, करेक्ट. फ्रंट व्यू में हाइट मिलेगा आपको, तो हाइट इज 50. ओके, so whenever you have seen this thing that length, width and height mil gaya, so first you need to draw a rectangular box. Okay, now all of you please keep your roller scale with you. Okay, please keep your roller scale with you and one pencil. Okay, so now first you mark one point here. एक point mark कर लो. Okay, now this is your point O. Okay, ये आपका पॉइंट O, मतलब O इज योर ऑब्जर्वर. ओके, सो व्हाट वी विल डू, just a minute. Okay, so this is my observer. First I will mark the point. Now we have to take the distance. 120 का लेंथ कहाँ पे? देखो लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में 90 प्लस 30, that is 120 का लेंथ is there. Okay, so what I will do with the help of projection lines, okay, I will select the projection lines and from here I will take 120 ka length. Okay, now first what you need to do from here, okay, you first draw a horizontal line like this from point O. Okay, and after that you have to take angle 30 degree. देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है? आपको 30 डिग्री का एंगल लेना है. देखो यहाँ से यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है. ओके, तो 30 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाना है. ओके, यहाँ पे भी एंगल जो बनेगा इस तरफ भी. ओके, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ओके, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे से देखो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी 30 जाना है, इस तरफ भी 30 जाना है.
और यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकल एक लाइन आएगा यहाँ से, ठीक है। सो नाउ वेयर यू विल मार्क दिस 120, देखो यहाँ पे ये 3 साइड है, इसमें 120 किधर आएगा, देखो ओ ऑब्जर्वर इधर है, तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में 120 है, सो 120 विल बी हियर, यहाँ पे 120 का लेंथ रहेगा। आया समझ में? इज इट क्लियर? ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में 120 का डिस्टेंस है, इसलिए 120 इस तरफ आया। ओके, इज इट क्लियर? बोलो। अभी 60 किधर एक है? बार फिर से बता। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर इधर है ना, इधर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के यहाँ पे किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना, ओ के लेफ्ट साइड में है ना 120, 90 + 30, यस और नो? ये लेंथ जो 120 दिख रहा है आपको ऊपर, मैंने टिक मार्क कर रहा हूँ, देखो ये लेंथ 120 ऑब्जर्वर के कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट। बोलो। लेफ्ट में ना। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पॉइंट एक मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर फिक्स कर दिया, और अभी मेरे को मालूम है कि ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में मेरे को 120 का लेंथ लेना है। आया समझ में? बोलो, ये क्लियर हुआ यहाँ पे? इज इट क्लियर नाउ? 120 का लेंथ हम लोग ने लेफ्ट साइड में लिया 30 डिग्री के एंगल पे, और इस तरफ कितना लेंथ लेना है मेरे को 30 डिग्री के एंगल पे, जो विथ है 60। ओके, तो इस तरफ मैं कितना लूंगा, 60 mm का, 30 डिग्री पे 60 mm का लाइन बनाऊंगा। ओके, फिर यहाँ पे ये एंड हो गया 60 डिग्री, 60 mm का लाइन बनाया। ओके, एंड हाइट कितना ये फिगर का, देखो हाइट 50। बोला 50 mm, तो ये पॉइंट से आप कितना mm का डिस्टेंस लोगे, ये वर्टिकल हाइट कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। आया समझ में? बोलो, ये क्लियर हो गया आपको? समझा कि नहीं समझा यहाँ तक? यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड। सो नाउ व्हाट यू विल डू, now with the help of roller scale, okay, you complete this box। अभी यहाँ पे देखो, ये जो ये 120 है, तो इसको पैरेलल लाइन बनाओ, 120 को यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन बनाया रोलर स्केल से। अब क्या करो, रोलर स्केल से सर रोल करके पैरेलल लाइन बनाओ। आया समझ में? 120 का पैरेलल लाइन, यहाँ पे 60 का पैरेलल लाइन, इसको रोलर स्केल को रोल करो ऐसा, तो यहाँ पे 60 mm आएगा। अंडरस्टूड? डिड यू गेट इट? देखो यहाँ पे 50 mm है, तो इसको रोलर सेल को रोल करके लेके आओ एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन टू दी, ये 50 को पैरेलल बनाओ ऐसा, देखो ऐसा आएगा, देखो सो विद द हेल्प ऑफ लाइट प्रोजेक्शन लाइंस, ओके, यू ड्रॉ दिस थिंग। देखो ये 50 का बना दिया मैंने। ओके, ये 120, ये देखो इसको 50 को पैरेलल लाइन बनाया मैंने, ये 50 mm का, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखो 50 mm का लाइन आएगा ऐसा। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बोलो। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्राइंग एग्जैक्टली पैरेलल लाइन। अब ये 60 को एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनाया मैंने, देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। देखो ये देखो, ये 120 को पैरेलल लाइन बनाया, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है आपको? ओके, देखो इसको पैरेलल बनाओ, ये 50 mm का रहेगा पैरेलल लाइन। ओके, ये कितना mm का रहेगा, 60 mm का रहेगा। ओके, एंड दिस इज अगेन 120। देखो, so first initially whenever you are starting with an isometric drawing, okay, so all of you, okay, you have to complete this rectangular box first of 120 by 60 by 50। ये सबने किया क्या, बोलो मेरे को, किसी का भी बाकी है तो बोलो। did you complete this box, all of you? यस सर। और एक सेकंड। बनाओ बनाओ, it will take some time but you draw it properly, okay। ये बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स अपने रॉन्ग बना दिया तो आपका ड्राइंग नहीं बनेगा, याद रखो, ठीक है। आया समझ में? ये सब पैरेलल डिस्टेंसेस है, ये 60 को पैरेलल बना है आपने, ये पैरेलल डिस्टेंस है, ये 120 को पैरेलल है। रोलर स्केल को रोल करके लेके जाने का ऐसा, इसको रोलर स्केल को रोल करो, एंड इफ यू आर हैविंग ड्राफ्टर देन द बेस्ट थिंग, ड्राफ्टर को फिक्स करके 30 डिग्री के एंगल पे आपको लाइन बनाना है।
Yes, till here it is clear. Is it over till here? यहाँ तक हो गया तो बोलो, then we will proceed further. ड्राफ्टर से क्या बनाना है? पहले क्या करो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। पॉइंट मार्क करने के बाद ये अपना पॉइंट ओ नाम दे दो। यहाँ से आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ओ, ये पॉइंट से पास करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने का, आपको एक वर्टिकल लाइन बनाने का ऐसा, ठीक है। और दो लाइन बना लो 30 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे एक लाइन बनाओ 30 डिग्री के एंगल पे, और इस तरफ एक लाइन बनाओ ऐसा 30 डिग्री के एंगल पे। आए समझ में, दोनों तरफ 30 डिग्री ले लो। फिर जो भी लेंथ विथ और हाइट है ये डाल दो। लेंथ 120 है तो 120 किस तरफ है, ओके लेफ्ट साइड में 120 है तो 120 मैंने ये साइड में लिया, ठीक है। फिर दूसरा विथ बचा 60, तो 60 मैंने ये इस तरफ लिया। 120 और 60 हो गया, अभी बचा कौन सा, हाइट 50, तो ये हाइट आ गया इसका 50। फिर जैसे ही आपने कंप्लीट किया, फिर इसको क्या करने का है आपको, ये वाले लाइन को पैरेलल बनाने का, इस तरफ पैरेलल बनाओ, ठीक है। और ये 120 को इस तरफ पैरेलल बनाओ, ऐसी सेम पैरेलल लाइन, मतलब वही 30 डिग्री के एंगल पे बनेगा वो। आया समझ में, बोलो क्लियर हो गया ये, समझा आपको? कुछ डाउट है अभी भी, नहीं समझ में आ रहा है सर? ठीक है, यहाँ तक हो गया तो बोलो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। Yes. ओके वेरी गुड, चलो। सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस थिंग, ओके। ओके, तो नाउ जब भी आप आइसोमेट्रिक बनाओगे ना, आपको यही एंगल लेना है, याद रखो। ओके, ये इस तरफ 30 डिग्री एंड ये साइड में भी 30 डिग्री, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल से हम लोग बनाते हैं आइसोमेट्रिक का ड्राइंग। नाउ देन वी विल स्टार्ट विद अवर मेन ऑब्जेक्ट लाइन। ओके, ये हो गया, उसके बाद हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन से। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट लाइन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, वैसा सेम टू सेम इधर देखो। 120 का लेंथ किस तरफ है, इस तरफ है ना, यहाँ पे 120 है, बराबर है, ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में। तो जो भी फ्रंट व्यू है, आप बराबर फ्रंट में वैसे ही पेस्ट कर दो, समझे कि नहीं? तो आपको कैसा, आधा फिगर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ से ओ से कितना है, यहाँ पे ये कॉर्नर से कितना है, हम लोग ऊपर कितना mm गए, 10 mm गए, ठीक है। तो मैं सबसे पहला ओ से क्या करूंगा, ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ से मैं ऐसा 10 mm ऊपर गया, देखो ये 10 mm मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये 10 mm का लाइन बनाया, ओके। फिर यहाँ पे से कैसा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंड तक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा एंड तक इसको ज्वाइन कर दिया, देखो, ठीक है। ये 120 का लेंथ है, देखो ऐसा। जैसा फ्रंट व्यू मेरे को दिख रहा है ना, सेम मैं वैसे ही बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो। फिर वन फ्रंट व्यू के बाद यहाँ पे कितना, ये 50 mm है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से 50 mm का स्ट्रेट लाइन बना दिया। सेम मतलब क्या करे, कॉपी पेस्ट करे, जैसा फ्रंट व्यू है, फ्रंट में जैसा दिख रहा है वैसा हम लोग बना रहे, समझे कि नहीं? तो ये ओ से देखो 120 का लेंथ है, ओ से 120 हो गया, देखो 90 + 30 बराबर है कि नहीं, बोलो। यहाँ तक ओके है, समझ में आया, बोलो। फ्रंट व्यू में देखो ना, ओ से 90 + 30 120, तो यहाँ से मैंने 120 का डार्क लाइन बनाया। फिर यहाँ से 50 mm ऊपर है, तो इधर से मैं सीधा 50 mm ऊपर जा रहा हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, जरा देख के बताओ मेरे को, ये लेंथ कितना है? 45 45 कैसा रहेगा, देखो ठीक से, यहाँ से इसको नीचे प्रोजेक्ट 60 करो। 40 60 ये 75 60 60 हाँ 60 60 बराबर है, 60 है ना, देखो ऊपर से प्रोजेक्शन दिया है, बताया मैंने, देखो ये हाँ सर 30 + 30 60 है। तो अपने को यहाँ पे कितना जाना है, फिर इधर से अपने को कितना अंदर जाना है, 60 जाना है। आया समझ में, बोलो बराबर है, यहाँ तक 60 गया मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सर तो यहाँ यहाँ तक 60 हो गया, ठीक है। अभी 60 के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक इन लोग ने ज्वाइन कर दिया, देखो एंड तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बनाने के बाद इधर से इधर तक इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। आया समझ में, देखो ये 60 तक बनाया मैंने पहला, ठीक है। देखो यहाँ तक ओके कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना?
तो मैंने क्या किया, बेसिकली क्या किया बताओ, मैंने एक्चुअली में जैसा फ्रंट व्यू मेरे को दिख रहा है ना, वैसा सेम टू सेम मैंने ये फिगर इस तरफ बना दिया फ्रंट साइड में, ठीक है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, आपको जहां जहां पे कॉर्नर है ना, वहां वहां पे आपका क्या आएगा, डार्क लाइन आएगा। जैसा कॉर्नर आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर दिख रहा है, देखो ठीक है, ये जगह पे एक कॉर्नर दिख रहा है और यहाँ पे एक कॉर्नर दिख रहा है। तो जिधर जिधर कॉर्नर दिख रहा है, अभी यहाँ पे एक कॉर्नर है, ठीक है, तो इधर से क्या आएगा, डार्क लाइन आएगा, मतलब फ्रंट व्यू में, समझे कि नहीं। तो अभी हम अगर हम लोग देखते देखो, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे ऊपर, इसका प्रोजेक्शन देखो, टॉप व्यू में अपने को यहाँ पे एक डार्क लाइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है टॉप व्यू में, ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर को नीचे Yes. प्रोजेक्ट किया तो डार्क हाँ लाइन सर। दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसा सीधा डार्क लाइन बना देंगे, देखो आया समझ में, देखो। तो ये डार्क लाइन कितने एमएम का रहेगा, 60 mm का रहेगा, यहाँ से सीधा मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इधर भी कैसा है, ये जो है, अभी देखो जब भी हम लोग टॉप से फिगर को देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इधर भी कॉर्नर है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, डार्क लाइन बना दिया, देखो बराबर है कि नहीं बोलो, ये समझा। देखो यहाँ पे जिधर जिधर कॉर्नर है ना, यहाँ से मैंने डार्क लाइन बना दिया। अभी यहाँ पे और यहाँ पे ये एंड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर दिया, देखो। अभी ये मैंने क्यों ज्वाइन किया मालूम है, जब भी मैं टॉप व्यू में देख रहा हूँ, देखो ये टॉप व्यू में अपने को ऐसा दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर जैसा, ठीक है, बट एक्चुअली में ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कौन सा चीज है, ये जो इंक्लाइन में है वही एक्चुअली टॉप व्यू में अपने को स्क्वायर जैसा दिख रहा है, समझे कि नहीं। बट फ्रंट व्यू में मैं जब भी देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये जो फ्लैट ऐसा है जो इंक्लाइंड है, ये अपने को टॉप में ऐसा स्क्वायर जैसा दिख रहा है। आया समझ में, बोलो क्लियर हो गया ये बात, ये समझा आपको, बोलो। हाँ सर। तो जब भी हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं ना, ये फिगर को ऐसा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर को जब भी आप ऐसा ऊपर से देखोगे, तो ये जो इंक्लाइन पार्ट है, ये आपको कैसा ऐसा स्मैश कर दिया समझो हम लोग ने, तो ये कैसा एक ही प्लेन में दिखेगा। बट वो कहाँ कहाँ पे पता चलता है, फ्रंट व्यू में पता चलता है, देखिए कि नहीं वो ऊपर नहीं है, वो एक्चुअली कहाँ पे, यहाँ पे इंक्लाइंड पे हो, समझे कि नहीं। ये स्क्वायर जो मैंने ऐसा मार्क किया, देखो हाईलाइट किया, देखो यहाँ पे फिगर में, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो ये समझा आपको अच्छे से। तो इसको हम लोग फिर डार्क बना देते, देखो जहां जहां पे कॉर्नर है, उधर से दूसरे प्लेन में हम लोग ने इसको डार्क बना दिया, देखो। तो ये हम लोग का फिगर का इतना पार्ट बन गया, देखो आइसोमेट्रिक का। ये समझ में आया आपको, बोलो ओके है यहाँ तक, बोलो इज इट क्लियर। Yes, sir. Okay, very good. So now what we will do, now we will first mark the axis। देखो अभी आपको डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इधर देखो ये 15 है, 15 प्लस 30, ओके 15 प्लस 30। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ये जो हिडन लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये हिडन लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ पे, देखो ये मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ये हिडन लाइन देखो किसके वजह से, ये वाले स्लॉट के वजह से, देखो बराबर है। तो ये कितने एमएम पे, पहला वाला 15 एमएम पे, ये यहाँ से ओ से, बराबर है कि नहीं बोलो। ये पहला वाला 15 एमएम पे, सेकेंड वाला डिस्टेंस जो है, सेकेंड वाला हिडन लाइन कितना है, 30 एमएम है डिस्टेंस, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओ से पहला मैं क्या कर रहा हूँ, 15 एमएम का डिस्टेंस ले रहा हूँ, देखो ओ से क्या कर रहा हूँ मैं, 15 एमएम का डिस्टेंस लेके ऐसा देखो एक प्रोजेक्शन बना के छोड़ दो, जैसा फ्रंट व्यू में दिखा रहा है, ये हिडन लाइन जो दिखा रहा है फ्रंट व्यू में, समझा आपको, बोलो। यहाँ से मैं कितना एमएम गया अंदर, यहाँ से मैं कितना एमएम गया अंदर, 15. बोलो 15 एमएम, वेरी गुड। ये 15 एमएम में अंदर गया पहले, ये पॉइंट मार्क किया और यहाँ से एक ऐसा वर्टिकल लाइन बनाया, ठीक है। अभी ये 15 एमएम से दूसरा डिस्टेंस कितना चाहिए मेरे को, 30 एमएम चाहिए। तो मैं ये 30 एमएम का डिस्टेंस मार्क किया, 15 से दूसरा डिस्टेंस कितना है अपने को चाहिए, 30 एमएम। आया समझ में, तो 30 एमएम का डिस्टेंस मार्क किया, फिर क्या करो, यहाँ से वापस आप प्रोजेक्शन लाइन बनाओ, इधर से वापस प्रोजेक्शन लाइन बनाओ ऐसा, ठीक है, 30 एमएम के डिस्टेंस पे। थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, इतना इतना डिस्टेंस पे रहेगा, देखो मैं थोड़ा आगे मार्क कर दिया।
ठीक है, देखो ये समझा आपको। तो मैंने क्या किया, पहला डिस्टेंस जो मार्क किया, ओके, वो कितना डिस्टेंस पे किया, ये 15 लिया, 15 के बाद ये वाला डिस्टेंस कितना लिया, 30 लिया। ये समझा कि नहीं, 30 क्यों लिया ये डिस्टेंस, टॉप व्यू में दिया है, देखो टॉप व्यू में दिया है फिगर में। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक ये हिडन लाइन लिया, ठीक है। अभी हम लोग ने मार्क करके छोड़ दिया, जैसा फ्रंट व्यू में दिख रहा है ना वैसे सेम, बट ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन से मार्क किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से इसको ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, ठीक है, और इधर से इसको ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। हाँ समझ में, बोलो यहाँ तक क्लियर है। एग्जैक्टली ये वाले प्लेन पे इसको पैरेलल लाइन बनाओ, ये वाला जो है ना ऊपर वाला, इसको ऐसा पैरेलल लाइन बना के छोड़ दो, इधर इसको ऐसा ये वाले प्लेन को ऐसा पैरेलल लेके छोड़ दो। क्लियर, बोलो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देन आफ्टर दिस, अभी ये डिस्टेंस कितने पे, देखो ये 15 mm के डिस्टेंस पे, मतलब ये स्लॉट हो गया, ये 15 mm हो गया। इसके आगे फिर कितना, 30 mm, मतलब ये जो है, ओके, ये पॉइंट से आगे कितना है, 30 mm के डिस्टेंस पे आपका एक्सिस है। ये जो है ना यहाँ पे देखो, ये जो है, देखो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये कॉर्नर का, तो यहाँ से नेक्स्ट एक्सिस कितने डिस्टेंस पे, देखो टोटल एक्चुअली 90 mm पे एक्सिस है, अगर आप देखोगे ना ओ से, ओके, देखो ओ से कितना डिस्टेंस पे, 90 mm के डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखो ना ओ से 90 mm के डिस्टेंस पे आपका एक्सिस है, देखो ऐसा। तो ये मैंने एक्सिस ऐसा मार्क कर लिया, ये अपना एक्सिस लाइन है, समझो। देखो ये अपना एक्चुअली एक्सिस लाइन है, रेड में लेते हैं अपने इसको, ठीक है। तो ये मैंने 90 mm के डिस्टेंस पे एक्सिस लाइन ऐसा मार्क कर दिया, देखो ये हम लोग का एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सिस लाइन जैसा बना देता हूँ, जैसा मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, देखो जैसा फ्रंट व्यू में जो फिगर दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वैसे ही बना रहा हूँ, देखो, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसा फ्रंट व्यू में दिख रहा है वैसे ही बना है मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है हम लोग का एक्सिस लाइन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर है देखो टॉप व्यू में, अभी टॉप व्यू जैसा है वैसा सेम टू सेम बनाना है। तो टॉप व्यू में यहाँ पे एक्सिस लाइन कितने पे रहेगा, ये टोटल 60 है, 60 का आधा करो, कितना आएगा, 60 का आधा किया तो बोलो, 30। 30, वेरी गुड। तो ये 60 है, तो 60 का आधा करेंगे तो 30, मतलब यहाँ पे किधर तो आ रहा है, देखो, ठीक है। तो हम लोग दूसरा एक्सिस लाइन भी बना लेते हैं, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये फिगर से इसका भी सेंटर निकालो, 60 का आधा, तो ये 30 रहेगा, बराबर। तो ये ऐसा रहेगा, देखो यहाँ पे 30 से लेके इधर ज्वाइन करो, ठीक है। और ये एक्सिस लाइन यहाँ से लेके फिर ऐसा नीचे मैंने बना दिया, देखो ये एक्सिस लाइन हो गया फिगर का सेंटर लाइन, ठीक है। तो इसको सेंटर लाइन जैसा मैं बना देता हूँ, देखो, ठीक है। तो आया समझ में। सर सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से बनाना है कि प्रोजेक्शन थोड़ा सा लाइन से? मीडियम 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 डार्क बनाओ, मीडियम डार्क बनाओ उसको, बाद में हम लोग को उसको निकाल देंगे उसको, बट आप इसको बनाओ ऐसा मीडियम मीडियम डार्क बनाओ, ज्यादा डार्क मत बनाओ, नॉर्मल, ठीक है। देखो आया समझ में, देखो मैंने ऐसा बना दिया, सेंटर लाइन बना दिया, बोलो ये समझा आपको। यहाँ पे पूरी फिगर का सेंटर, मतलब यहाँ पे देखो इस तरफ हम लोग ने क्या किया, इधर हम लोग ने 30 लिया, ठीक है, ये 30, ये 60 का आधा किया, इधर सेंटर, ये सेंटर से इधर जोड़ा, फिर यहाँ से वापस इसका हाफ निकाला हम लोग ने, ठीक है। इसका हाफ, ये 60 का हाफ कितना रहेगा, 30। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग ने पैरेलल बनाई ये प्लेन को ऐसा, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ, ये समझा आपको। यहाँ तक सबको, सबने बनाया क्या, कुछ भी डाउट है, नहीं आ रहा है ऐसा, कुछ भी डाउट है, बोलो, कुछ भी डाउट है, यहाँ तक नहीं आया ऐसा कोई भी है जिसको नहीं समझ में आया। अरे बोलो,
हेलो, सर। यहाँ तक बना है सबने? किसी को डाउट है, नहीं आ रहा है, अटक गया किधर बीच में, नहीं आ रहा है तो बोलो, पूछो। क्योंकि अगर आपको ये एक फिगर समझ में आए ना तो आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो आइसोमेट्रिक में। दिस इज द बेसिक्स। बेसिक आ गया तो सब आएगा आपको। 60 पे जो लियो प्रोजेक्शन है वो बताओ ना। कौन सा वाला बोल रहे हो? 60 पे कट किए थे ना सर, 60 पे? टॉप व्यू में सर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन क्या पूछ रहे हो, वापस बोलो एक बार जरा। हेलो, टॉप व्यू से जो लिए थे ना, सेंटर लाइन कट किए हो ना। अच्छा ये वाला सेंटर लाइन। यस सर। ये कैसे मालूम पड़ा? देखो यहाँ पे 60 mm है, यहाँ पे ये 60 है, बराबर है। देखो इधर 60 mm दिया, 60 का आधा करेंगे तो कितना आएगा पहले ये बताओ, बोलो। 60 30। का 30। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 का आधा किया पहला 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, फिर यहाँ पे भी ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm है देखो, तो उसका हाफ करो, 60 का हाफ यहाँ पे क्या रहेगा, 30 रहेगा। तो पहला मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन किया और उसको सेंटर लाइन जैसा बना दिया। मतलब ये फिगर का हाफ, सेंटर लाइन मतलब क्या, फिगर के हाफ से जा रहा है जो 60 का आधा, आया समझ में? तो ये पूरा सेंटर यहाँ से यहाँ तक किया। फिर यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस इधर से इधर तक भी देखो 60 है, देखो तो 60 का आधा कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो मैंने यहाँ से सेंटर लाइन को नीचे कंटिन्यू किया, इधर से इधर तक सेंटर लाइन बनाया। आया समझ में? बोलो अभी क्लियर है? अभी यस सर। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर मेरे को बताओ हो गया तो बोलो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक हो गया, आपको समझा पूरा? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग है ना आइसोमेट्रिक सर्कल कैसा बनाते। जब भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना तो ये सर्कल ऐसा नॉर्मल नहीं दिखेगा, तो ये सर्कल कौन सा रहेगा, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है हम लोग को अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो अभी ये रेडियस कितना दिया है इसका, 30 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, 30 बाई 30 का एक रोम्बस बनाना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो अभी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक रोम्बस बना हुआ है, देखो मतलब टोटल 30, मतलब अभी यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है समझो अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला समझो सर्कल बनाना है, इसका डायमीटर कितना है, 30 है, करेक्ट, बराबर है ना? या फिर समझो कोई एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 60 है समझो, ठीक है। तो अभी देखो ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक भी 60 है ना, ये भी 60 है, देखो ये भी 30 + 30 60 रहेगा। देखो मेजर करके देखो ये 60 है कि नहीं, मेजर करके बोलो मेरे को कितना आ रहा है। देखो ये 60 है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, पहला ये देखो यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, ठीक है, मैं पहला बाहर दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये 60 हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया ऐसा, ठीक है। देखो ये आपका रोम्बस ऐसा दिख रहा है, देखो ये 60/60 का, ठीक है, ये आपका रोम्बस हो गया। अभी आइसोमेट्रिक सर्कल कैसा बनाने का, देखो इसमें सबसे पहला ये डिस्टेंस भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, इसका जो डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये रोम्बस में लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है, मेरे ख्याल से ये वाला है, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। ये अपना लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया रोम्बस में। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल पहला आप ज्वाइन कर दो, ऐसा ज्वाइन करने का एक साइड में बना के रखो, मैं जैसा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 60/60 का पहला ऐसा रोम्बस है आपका, तो उसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन किया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी उसका शॉर्टेस्ट डायगोनल है, शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है, देखो ये और ये दोनों शॉर्टेस्ट डायगोनल हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका शॉर्टेस्ट डायगोनल और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करना है। ये मिड पॉइंट देखो यहाँ पे 60 का मिड पॉइंट ये रहेगा, हाँ या ना बोलो, बराबर है। ये 60 का मिड पॉइंट मतलब 30 इधर किधर रहेगा, एग्रीड और नॉट, बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी शॉर्टेस्ट डायगोनल है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ऐसा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर मिलेगा आपको, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा C1, आया समझ में?
अभी दूसरा शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है, यहाँ पे देखो ये डायगोनल अपना शॉर्टेस्ट डायगोनल है ना, तो ये डायगोनल और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, तो इसका ये डायगोनल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला, इसका मिड पॉइंट आप मार्क करो और उसके बाद इसको ज्वाइन करो। देखो ऐसा ऐसा यहाँ से लेके, सॉरी, देखो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आपको दूसरा एक और सेंटर मिला, ये हो गया आपका सेंटर C2। आया कि नहीं समझ में, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो यस ठीक है। तो अभी क्या करने का, जब भी आप इधर सर्कल बना रहे हो ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ये कंपास को है ना यहाँ पे रखेंगे, C1 पे पहला रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, देखो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और ये ब्लू में बना रहा हो, देखो अभी यहाँ पे जो सर्कल रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इधर से ऐसा इसको रेडियस लिया मैंने, इसको ये डिस्टेंस को, तो यहाँ से हम लोग ने पहला ऐसा मार्क बनाया, देखो ये आर्क बनाया, समझे, टेकिंग दिस एज दी रेडियस, ये वाला इसको सर रेडियस, वापस बताओ एक मिनट। देखो वापस बता रहा हूँ, देखो अभी क्या करने का, कंपास को यहाँ पे रखो C1 पे, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर ये आर्क घुमाना है ऐसा, तो ये आर्क घुमाओगे तो ये ऐसा आर्क घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे। वैसे ही अभी आप लाइन के क्या बाहर नहीं करोगे, जाएगा। नहीं बाहर नहीं, इधर तक जाके छोड़ देने का, यहाँ तक हो गया ना, ऐसा यहाँ तक गया और छोड़ दो। अभी यहाँ पे देखो C2 पे कंपास को रखो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, कंपास में, और यहाँ से लेके वापस आर्क घुमाओ, तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो ऐसा आर्क घूमेगा। हाँ समझ में, बोलो यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्क बनाया ऐसा, ये समझा आपको, बोलो ये C2 पे रख के आर्क घुमाया। अच्छा, तो ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया, C1 C2, दूसरा दो सेंटर ये रहेगा, ये एक रहेगा सेंटर C3 और ये एक रहेगा सेंटर C4, ठीक है। तो अभी आप क्या करने का, कंपास को यहाँ पे रखो, C3 पे रखो, ठीक है, और यहाँ पे कंपास का ये डिस्टेंस ले लो, C3 से लेके ये डिस्टेंस, और फिर इसको घुमाओ ऐसा, तो ये घुमाओगे तो ये आर्क ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा आर्क बनेगा। C3 पे कंपास को रखो, इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो और ऐसा आर्क बनाओ ऐसा यहाँ पे, आए समझ में। अभी इस कंपास को C4 पे रखो, C4 पे रख के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ये रेडियस हो गया, और यहाँ से ऐसा घुमाओगे तो ये आर्क ऐसा बनेगा, देखो ऐसा ऐसा बनेगा, समझे कि नहीं। तो ये आपका आइसोमेट्रिक सर्कल ऐसा फाइनली बनने वाला है। समझ में आया आपको, बोलो क्लियर है, Yes, sir. समझा ना। तो ये आइसोमेट्रिक सर्कल अभी सेम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले आप क्या करो, इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है, देखो जरा लॉन्गेस्ट डायगोनल किधर आएगा इसका, बोलो ये रहेगा, देखो ये इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है, करेक्ट, बराबर है ना। Yes, sir. ब्लू में बना है, देखो ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट डायगोनल के बाद में क्या बोला मैंने, शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करने का। तो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट कौन सा हो गया, देखो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ठीक है। यहाँ से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ये वाला हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक, बराबर है। और इधर से ये शॉर्टेस्ट डायगोनल से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट मतलब ये वाला हो गया, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। ये शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, बराबर है कि नहीं, बोलो। यहाँ तक समझा आपको, सेम किया, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया वही किया मैंने। यहाँ तक हो गया तो बोलो आगे प्रोसीड करूंगा फिर, ठीक है। अभी आपको मैंने क्या बोला था, क्या मार्क करने का, सेंटर मार्क करने का। तो मेरे को पहला एक सेंटर मिल गया, देखो यहाँ पे इधर एक सेंटर मिल गया, ये अपना एक सेंटर हो गया, इसको मैंने मार्क कर दिया, ये हो गया अपना C1, ठीक है। और दूसरा सेंटर कहाँ पे मिल रहा है अपने को, इधर मिल रहा है, ये हो गया C2,
लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे देखो, जब भी मैं टॉप व्यू में देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा एक सेंटर कौन सा रहेगा, ये एक सेंटर रहेगा C1, ये दूसरा सेंटर रहता है अपना C2, ठीक है। फिर ये तीसरा सेंटर रहेगा अपना C3, ओके। और ये लास्ट वाला चौथा सेंटर रहेगा अपना C4, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला C1 पे आप कंपास को रखो, ओके। टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। C1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लो एंड देन यू टर्न एन आर्क। सो इफ यू टर्न एन आर्क सो इट विल लुक लाइक दिस। देखो C1 से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्क को घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से लेके ऐसा, सॉरी, यहाँ से लेके ऐसा जा रहा है, देखो। देखो ये आपको आया कि नहीं, बोलो। ये जो है ना, ऐसा बन रहा है आर्क, बोलो। हेलो, C1 पे कंपास को रखो और इसको ज्वाइन करो, ऐसा इसको ज्वाइन करो, तो ये आर्क आपका ऐसा बनेगा, देखो। अरे बोलो, बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर ना, सबको आ रहा है ना? देखो मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करोगे तो आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एकदम सिंपल है। इधर से इधर तक मैंने पहला आर्क बनाया। अभी सेकंड सेंटर आप क्या करो, इसको ले लो, इसको, ये C3 को ले लो सेंटर को, ठीक है। कंपास को C3 पे रखो, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, C3 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो और दूसरा आर्क घुमाओ ऐसा। तो आप दूसरा आर्क घुमाओगे तो ये ऐसा जाके, ऐसे जाके यहाँ पे आके ज्वाइन होएगा, देखो। ये आर्क आपको इससे कंपास से बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ। आया समझ में, बोलो। तो C3 पे आप कंपास को रखो, ये जो C3 मैंने दिखा है ना यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटर जो है, ये आपका नेक्स्ट सेंटर हो गया ना C3। C1 C2 यहाँ पे हो गया, ये C3 हो गया। तो C3 पे कंपास को रखो, इधर से इधर तक का डिस्टेंस लो और ये आर्क बनाओ, तो यहाँ पे आके ऐसा ज्वाइन होएगा। यहाँ तक हो गया, बोलो। यहाँ तक होने के बाद आपको टॉप व्यू में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा डार्क लाइन दिख रहा है, देखो टॉप व्यू में। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा डार्क लाइन दिख रहा है, बराबर है। तो हम लोग सेम जैसा टॉप व्यू में दिखा थे तो वैसा डार्क लाइन ज्वाइन कर दो यहाँ पे। देखो जैसा टॉप व्यू में दिखा है वैसा मैंने ज्वाइन कर दिया। आया समझ में, बोलो। यहाँ तक ओके, बोलो। जैसा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिख रहा है वैसे ही मैंने बनाया, देखो यहाँ तक। आया कि नहीं समझ में, बोलो। Yes, sir. कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा किसी को भी? Anyone is having any doubt? Did you, if you're not getting, please ask me. Yes, what about सेकंड आर्क को C3 से निकालेंगे। C3 पे कंपास को रखो। ये जो C3 मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखो C3 दिया है ना, मैंने लिखा है, देखो। तो देखो इधर C3 है ना, मैंने इरेज किया, देखो। अभी ये कंपास को यहाँ पे रखो C3 पे, ये वाला देखो। दो सेंटर, एक सेंटर इधर, एक सेंटर इधर है। अब ये पूरा सर्कल बनाने का रहता तो C2 का काम आता था। अभी ये सिर्फ आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है। यहाँ पे देखो ना, टॉप व्यू में यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है ना, तो ये वाला बना रहे हम लोग। टॉप व्यू में मैंने जब भी देखा तो मेरे को यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है ऊपर, तो ये मैंने सेमी सर्कल बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टॉप व्यू से पता चला मेरे को, इधर से दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो। Yes, sir. हाँ, तो ये वाला सेमी सर्कल बनाया मैंने। अभी इसके अंदर देखो, अंदर एक और सर्कल है टॉप व्यू में, तो ये अभी अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये सर्कल कैसे बनाएंगे, बोलो। ये सर्कल का रेट ये कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 30 दिया है, देखो डायमीटर। तो आपको रोम्बस कितने बाय कितने का बनाना पड़ेगा, बोलो। 30 बाय 30 का, यस, 30 बाय 30 का रोम्बस बनाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ से 30 mm का डिस्टेंस ले लो, ठीक है। ये जो एक्सिस लाइन है ना आपका, सेंटर लाइन, तो
इसमें से आप क्या करोगे सबसे पहला? 31 का रोमबस भी बना दो। अभी क्या करना है मालूम है आपको? यहाँ से पहला ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से देखो, ये जो है ना, ये 30 है, करेक्ट? यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड, रेड में मार्क करते हैं हम लोग। रोम्बस 30 बाई 30 का बनाने का तो कैसे बनाएंगे, सोचो जरा, कैसे करेंगे? साइड से 15-15 छोड़ता है। सेंटर से 15-15 ले लो। हाँ, सेंटर से दोनों तरफ 15-15 ले लो, और इधर भी सेंटर से दोनों तरफ 15-15 ले लो, बराबर है ना? वैसे ही करेंगे ना? इधर से 15-15 लिया मैंने, ठीक है, और इधर से 15-15 ले लो दोनों तरफ। फिर उसके बाद में ये रोम्बस को कंप्लीट करो, पैरेलल लाइन बनाओ, इसको पैरेलल बनाओ। ये जो है ना यहाँ पे बनाया अपन ने, ये लाइन को पैरेलल आएगा, ठीक है, इधर से पैरेलल बनाओ ऐसा। रोमबस कैसे दोगे? ये रोम्बस अपने को 30 बाई 30 का बनाना है। यहाँ पे डायमीटर 30 दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30 आना चाहिए, ऐसा देखो, ये 30 रहेगा। रोम्बस का सब साइड सेम रहता है ना, और ये लाइन को पैरेलल बनाने का है, जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, इसको पैरेलल बनाने का, जो भी अपना ये वाला साइड है ना, इधर का पैरेलल लाइन बनाने का, देखो ऐसा, देखो ऐसा। एक्चुअली ये जो अपन ने बाहर वाला बना है ना, इसी के ऊपर ही आएगा ये, देखो ये ऐसा आ रहा है क्या, देखो, ये रोम्बस बना के आपका, देखो ऐसा रोम्बस बना। बोलो, समझा ना? सबसे पहला मैंने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना, ये 15 बना है, फिर ये बनाया, देखो ये वाला 15 बना है, दोनों तरफ 15-15 बना है ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाया देखो। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको पैरेलल लाइन बनाओ ऐसा, ठीक है, इसको पैरेलल बनाओ, ओके। फिर ये वाले प्लेन को पैरेलल बनाया मैंने ऐसा, ओके, और ये बाजू वाले प्लेन को पैरेलल बनाया ऐसा। ये रोम्बस बन गया अंदर वाला। आया कि नहीं ये रोम्बस, मेरे को बोलो, मैं तो वापस बताएंगे, बोलो। ये रोम्बस समझा कैसे बनाया? सबको आया रोम्बस बनाने? सेम ही है, जो बाहर वाला है ना, उसको ही पैरेलल करके छोटा अंदर वाला रोम्बस बना रहे। सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सर्कल का कितना दिया है डायमीटर। ये सर्कल का डायमीटर देखो, यहाँ पे 30 mm दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने 30 बाई 30 का ये रोम्बस बनाया सबसे पहले। ये समझा आपको? बोलो, बोलो, रोम्बस समझा? तो वापस बताओ। पहला यहाँ से मैंने 15 mm मार्क किया, ठीक है, यहाँ से 15 mm मार्क किया, इधर से 15 मार्क किया, इधर से 15 मार्क किया, देखो ये 15 मार्क करने के बाद इसको पैरेलल लाइन ले लिया मैंने, ये वाले प्लेन को, ठीक है, तो एकदम प्रोजेक्शन लाइन से एकदम लाइट लाइंस बनाने का, प्रोजेक्शन लाइन से, ठीक है। ये सब जो भी आप बना रहे हो प्रोजेक्शन लाइन से रोम्बस बनाना है आपको। तो एकदम लाइट रोम्बस बनाया मैंने 15-15 mm का, ठीक है। इसको भी पैरेलल लिया मैंने, देखो 15 mm के बाद इधर पैरेलल लिया, दोनों तरफ 15-15 लिया, ठीक है। फिर इधर मैंने यहाँ पे भी मार्क किया था, तो यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया, देखो इसको, दिख रहा है कि जूम करो थोड़ा फिगर को, देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया, 15 mm लिया ना दोनों तरफ, यहाँ पे मार्क किया 15, यहाँ पे मार्क किया, इधर भी एक्सिस पे 15-15 मार्क किया,
ठीक है, अभी इसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन को पैरेलल बना रहा हूँ, देखो ऐसा, देखो ये वाली लाइन को मैंने पैरेलल बना दिया। इस E2 को रब कर दो, अभी इसका काम नहीं है। ठीक है, so 15 mm, draw parallel lines to this plane, draw a parallel line to this plane. अंदर वाला रोम्बस सबने बनाया क्या, बोलो, आगे प्रोसीड करूं? क्या अंदर वाला रोम्बस बना 15x15 का? यस सर। टोटल 30x30 का रोम्बस बना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी बड़ा वाला डायगोनल है, ओके, बड़ा वाला डायगोनल कौन सा है इसमें, देख के बताओ जरा, बोलो, बड़ा वाला डायगोनल कौन सा है? ये वाला ना, ग्रीन में ज्वाइन कर रहा हूं, देखो देखो ये वाला डायगोनल, ये बड़ा वाला डायगोनल हो गया ग्रीन में। ठीक है, तो ये वाला डायगोनल मैंने ज्वाइन किया। अभी ये वाला छोटा वाला डायगोनल कौन सा है, दोनों तरफ ये वाला छोटा वाला डायगोनल है, तो छोटा वाला डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो ऐसा। तो यहाँ पे किधर का आएगा, देखो छोटा डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, यहाँ पे भी छोटा डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे ज्वाइन होएगा, देखो ऐसा, इसी एक्सिस के ऊपर ही ज्वाइन होएगा, समझे कि नहीं? ये डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। फिर उसके बाद सेंटर मार्क कर लो, ये आपका सेंटर आ गया पहला वाला, ये सेंटर हो गया C1, ये वाला सेंटर हो गया C2, है समझ में? ये सेंटर हो गया आपका C1, ये हो गया सेंटर C2। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटर कौन सा, ये वाला, ये हो गया C3, और ये वाला सेंटर हो गया आपका C4। देखो मैं जो भी डार्क डॉट में बना रहा हूँ, आया समझ में, बोलो क्लियर हुआ? ये देखो ये वाला सेंटर C1 आया, ओके, ये वाला सेंटर आपका C2 आया, ये वाला जो सेंटर है ये C3 हो गया, और ये वाला सेंटर हो गया आपका C4। आया समझ में, बोलो यहाँ तक ओके है? नहीं समझ में आया तो पूछो प्लीज। समझा सर। समझा ना, इजी है, जैसा पहला वाला बना वैसे ही बनाने का है। अभी इसके बाद क्या करो, कंपास को यहाँ पे रखो पहला वाले सेंटर पे C1 पे, और ये आर्क घुमाओ ऐसा। ठीक है, ये आर्क बनाओ, तो यहाँ पे रख के मैंने पहला आर्क बनाया ऐसा, देखो ये फर्स्ट आर्क बनाया। फिर यहाँ पे कंपास रख के दूसरा आर्क बनाओ, तो ये सर्कल का दूसरा आर्क आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर कंपास को यहाँ पे रखो, अभी ये वाले ऑपोजिट साइड के डायगोनल में, ये तीसरा आर्क ऐसा बनाओ, ये बनाओ ऐसा। ठीक है, फिर कंपास को कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखो, ये वाला कंपास को यहाँ पे रखो, और यहाँ पे ये ज्वाइन करो ऐसा, तो ये आपका सर्कल बन गया। देखो आया समझ में, बोलो ये आपका आइसोमेट्रिक का सर्कल बन गया। देखो ऐसा दिखेगा, देखो ये सर्कल ऊपर से मतलब प्रॉपर दिखेगा, ये अच्छा सर्कल जैसा दिखेगा। देखो वो प्लेन के हिसाब से दिखता है वो सर्कल। बोलो ये आ रहा है आपको? यस सर। सबको बनाया, सबने बनाया ना, वेरी गुड। चलो सो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अभी आपको समझ में आता है कि जब भी हम लोग सामने से देख रहे हैं ये फिगर को, तो ये एक्चुअली में ऐसा रेक्टेंगल जैसा नहीं है, ये एक्चुअली सर्कुलर पार्ट है, जो हम लोग को क्या, एज इट अपीयर्स एज अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस। तो एक्चुअली में ये फ्लैट सरफेस एग्जिस्ट करेगा क्या, बोलो? ये वाला फ्लैट सरफेस एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं ना, नहीं करेगा ना, ये नहीं करेगा ये एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी इसको इरेज कर दिया, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी आपको क्या करना है मालूम है, ये जो सर्कल का सेंटर था, देखो जिससे हम लोग ने आर्क बनाया था, ये वाला सेंटर था शायद से, ठीक है, जिससे मैंने ये वाला आर्क बनाया था, तो ये सेंटर को आप क्या करो, 50 mm नीचे प्रोजेक्ट करो यहाँ पे। ये सर्कल के सेंटर को क्या करो, आप इधर से नीचे 50 mm प्रोजेक्ट करो, यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट करो 50 mm नीचे, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, देखो आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है नीचे 50 mm पे, ऊपर से 50 mm नीचे प्रोजेक्ट करो इसको ऐसा।
ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया आपने, बोलो। सो आफ्टर ये प्रोजेक्टिंग, क्यों प्रोजेक्ट किया? क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो सर्कल का सेंटर है ना, ये सेंटर को मैंने नीचे इसलिए प्रोजेक्ट किया ताकि मेरे को यहाँ पे कर्व बनाना है। ये जो कर्व आपका ऊपर है ना, ऐसा, ये जो कर्व आपका ऊपर है, ये सेम कर्व यहाँ पे अभी कंपास को रखो। ठीक है, कंपास को रखने के बाद यहाँ से ऐसा घुमाओ, तो ये ऐसा घूमेगा यहाँ पे, ऐसा, यहाँ से ऐसा घुमाओ, तो ये क्या होगा, आप जब भी कंपास को यहाँ पे रखोगे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे रख के क्या करो, बोलो, इधर कंपास को रखो, कंपास को रख के इसको आप ऐसा टर्न करो, तो ये ऐसा टर्न होगा, यहाँ पे देखो ऐसा आर्क बनेगा यहाँ पे, ऐसा, ये आर्क बना पाए आप, बोलो। फिर जैसे ये आर्क आपने बनाया, फिर आप क्या करो, ऊपर के टैंजेंट से लेके ये नीचे वाले फिगर के टैंजेंट पे ज्वाइन कर दो, ऐसा, ऐसा ज्वाइन कर दो इसको, तो आपका फिगर एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है। देखो, जब ये हम लोग देख रहे हैं इस फिगर को, तो ये एक्चुअली ऐसा दिखेगा ये फिगर, देखो। अभी ये सेंटर लाइन जो मैंने बनाया था ना, इसको भी इरेज कर दो, जरूरत नहीं है सेंटर लाइन का, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताया था। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है जो डार्क में था, ये भी नहीं आएगा, ये भी इरेज कर दिया, देखो। तो एक्चुअली ये आपका फिगर ऐसा दिख रहा है, देखो, बनने के बाद में। हाँ, समझ में, बोलो। आपका फिगर एक्चुअली ऐसा दिख रहा है, समझे कि नहीं? तो वो जो कर्व पार्ट है वो कहाँ से मिलेगा, ऊपर का सेंटर नीचे प्रोजेक्ट करोगे और इसको ऐसा आप टेंजेंट पे बनाओगे, तो ये ऐसा दिखेगा आपको फिगर। बोलो, ये ओके है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? जैसे ही हो गया, मेरे को इसका सॉल्यूशन आप मेरे को व्हाट्सएप करना, सेंड करना व्हाट्सएप पे, तो मेरे को समझ में आएगा आपने बनाया खुद से करके फिगर। ठीक है, सेंड करोगे ना? यस सर। ओके, यस सर। ओके ओके। देखो अभी क्या करना है, अभी आपको ये स्लॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा ये स्लॉट दिख रहा है, देखो ये वाला। तो ये जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट है यहाँ पे, देखो ये रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ। तो अभी अपने को ये वाला स्लॉट बनाना पड़ेगा, है ना, ये रेड कलर का जो स्लॉट है। तो ये स्लॉट अभी कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना है, देखो ये टोटल 20 है, स्लॉट का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे 20 दिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सिस लाइन है, इससे दोनों तरफ आपको 10-10 mm लेना है। यहाँ से एक्सिस से इस तरफ 10 mm लो, इस तरफ 10 mm ले लो। ठीक है, एक्सिस से दोनों तरफ 10 ले लो, इधर से भी एक्सिस से दोनों तरफ 10 mm ले लो, इधर भी 10 लिया, इधर भी 10 ले लिया। ठीक है, 10-10 mm ले लिया दोनों तरफ। फिर इसको आप क्या करोगे, ज्वाइन करो। ये 10 mm है दोनों तरफ, 20 mm का स्लॉट है। ओके, यहाँ पे भी दोनों तरफ 10 mm है। ओके, फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, ये प्लेन के हिसाब से पैरेलल टू दिस लाइन, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, आया समझ में, बोलो। दोनों तरफ 10 mm लिया, इधर भी 10 mm लिया, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो, तो मैंने आपको बोला जहां पे कॉर्नर रहता है वहां से डार्क लेना था, तो यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो इसकी वजह से ये जो कॉर्नर है यहाँ से ऐसा एक डार्क लाइन जाएगा ऐसा पीछे की तरफ, मतलब ये अंदर का स्लॉट एज है ना वहां पे, तो एज का डार्क लाइन दिखेगा अपने को ऐसा। बोलो, ये क्लियर हो गया? आपको समझ में है ये डायग्राम पूरा अच्छे से? इज इट क्लियर? Any doubts you are having? After you finish this figure, you can erase of this center line. It is not required actually. Okay, you can remove this center line from here. ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया था, मतलब आपको फिगर बनाने के लिए लगेगा ना, इसलिए बताया था। ठीक है, सेंटर लाइन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन अगर वो नहीं बनाओगे तो आप ड्रॉ कैसे करोगे फिर फिगर?
है ना? कंपल्सरी नहीं है ना? कंपल्सरी नहीं है ना? कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी आपको सिर्फ ये मेन फिगर दिखना चाहिए और ये रोम्बस के अंदर आपका सर्कल और ये आइसो सर्कल दिखना चाहिए, मतलब जो सर्कल हम लोग ने बनाया है इसके अंदर, समझे कि नहीं? तो ये सर्कल का मैंने आपको टेक्निक बताया किस तरह से बनाने का है सर्कल। ओके, यस हो गया, सर। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर, तो सॉल्यूशन मैं आपको पोस्ट करता हूँ। रुको, देखो ठीक है, देखो ये दिखने में ऐसा है, देखो, है ना? तो हम लोग ने जो भी बनाया वो करेक्ट है, वो आया समझ में? यस सर। ओके, सो 11:20 हो गया, विल स्टॉप द लेक्चर नाउ, देन अगेन वी विल ज्वाइन एट 11:40। ओके, बाय सर। अरे बाय मत बोलो, वापस एक और सम करेंगे हम लोग। हाँ ओके, ओके सर। स्टॉप। ओके, वापस आओ 11:40।